خدا کے کلام میں آگے بڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں ہم روح القدس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے خدا یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا، اور اٹھائے جاتے وقت اس نے میرے لیے آپ کے لیے کون سی باتیں کی۔ تو آج ہم اختیار پہ بات کریں گے۔ متی رسول کی بابت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 28واں باب، اس کی 18ویں آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح رقم ہے: یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح اس سے بیشتر کہ آسمان پر اٹھائے جاتے، سود آسمانی کرتے۔ اب جانتے ہیں جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو 40 روز تک وہ اپنے شاگردوں کو مختلف مقامات پر دکھائی دیتے رہے۔ 500 سے اباب لوگوں کو خداوند یسوع مسیح دکھائی دیے، اور ایک ایسا زبردست اختیار شاگردوں کو بتایا کہ میں جب آسمان پر جانے کو ہوں تو یاد رکھو آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ I have all authority of earth and heaven۔ میرے پاس وہ سارے اختیارات ہیں جو زمین و آسمان کے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا تو ابلیس خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے اونچے پر لے گیا، ٹھیک ہے، کنگرے پر لے گیا، اور اوپر سے ساری دنیا کی شان و شوکت دکھائی اور کہا کہ اگر بدلے میں تو مجھے سجدہ کرے تو یہ دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ آج یسوع مسیح اس آفر کو تو اس وقت ہی انہوں نے رد کر دیا۔ وہ شاگردوں کو بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے وقت آئیں گے، بہت سارے ایسے مومنٹس آئیں گے، بہت سی ایسی راستوں میں رکاوٹیں آئیں گی۔ آپ نے ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ دنیا کا کل اختیار مجھے دیا گیا، اور آج میں وہی اتھارٹی اختیار آپ کو بھی ڈیلیور کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ جب تک خداوند یسوع مسیح ابلیس کو اجازت ہی نہ دیتا، ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آمین۔ بے شک ابلیس اس جہان کا خدا ہے، لیکن زمین و آسمان کا خدا جو ہے اس کے پاس ساری اتھارٹی ہے، سارے اختیارات ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ماں باپ کی طرف سے دولت ملتی ہے، جن کو ماں باپ کی طرف سے گھر ملتا ہے، جن کو ماں باپ کی طرف سے پراپرٹی ملتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے یہ جو اختیارات ہیں یہ کسی سے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس نے خریدے ہیں اپنی جان دے کر، خون کے عوض میں، خون کے بدلہ میں یہ اختیارات پائے ہیں اپنی جان دے کر۔ اور دنیا کے اندر بڑے ایسے لوگ ہیں جو ڈگریاں خریدتے ہیں، بڑے ایسے لوگ ہیں جو جابس خریدتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے یہ اتھارٹی اختیار خریدا نہیں ہے، بلکہ اپنی جان دے کر اس کو حاصل کیا ہے۔ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ دنیا کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کریں۔ اگر ہم متی کے انجیل اس کے 20ویں باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ لکھا ہے: اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان ساری باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آل اوور دا ورلڈ، آل اوور وے، جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے میں ہر جگہ پر تمہارے ساتھ ہوں گا، اور میری حشمت، میری قوت جو روح القدس کے وسیلہ سے سدا تمہارے ساتھ رہے گی۔ وہ ایک دن یا 2 دن کے لیے نہیں، بلکہ تا حیات آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور جہاں یسوع مسیح نے وعدہ کیا نا، جہاں 2 یا 3 مل کر متفق ہو کر میرے نام سے کسی جگہ پر ٹھہریں گے تو میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ تو بیسک 1 یا 2 سے مراد ہم جانتے ہیں کہ میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، خاندان کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر جو بات
खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों से कर रहे हैं। यहाँ पे रूह कुद्स की बात हो रही है। एक शख्सियत आपकी है, दूसरी पर्सनैलिटी रूह कुद्स आपके साथ रहेगा। आमीन। वो ना सिर्फ आपके साथ रहेगा बल्कि आपके अंदर रहेगा। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ शागिर्दों को रूह कुद्स देने का वादा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वादा कर रहे हैं। क्या वादा किया है? तीसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या वादा किया है कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। ये नहीं रूहे हक जो क्या करेगा तुम्हारे, आप अकेले नहीं होंगे, हम अकेले नहीं हैं। उसने वादा किया कि रूह कुद्स तुम्हारे साथ होगा। अगर इमाल की किताब उसके पहले बाब की आयत नंबर 4 से शुरू करें पढ़ना आयत नंबर 9 तक, तो आपको एक पैसेज मिलता है। जी क्या लिखा है? खुदावंद यीशु मसीह ने रूह कुद्स भेजने का और कुव्वत देने का वादा किया है और साथ शर्त क्या लगाई? तुमने ठहरे रहना है। आमीन। तो आज दुनिया मसीहत में बड़े लोग जो हैं खुदावंद रूह कुद्स के उस वादे की तकमील के लिए जो उसने किया था उसके लिए ठहरे हुए। जी क्या लिखा है? और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना और उनसे मिलकर उनको ये हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। और बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़र रहो जिसका तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। यहाँ पर बात करती कि यूहन्ना ने तो आपको पानी से बपतिस्मा दिया तो बाका, लेकिन आप थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स का बपतिस्मा पाओगे। और रूह कुद्स से क्या होगे जी? बात जाओगे। रूह कुद्स को किस किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? वो हमारे घर के काम नहीं करेगा। रूह कुद्स हमारी जरूरियात को पूरा नहीं करेगा। रूह कुद्स हमारे बच्चों की जरूरियात को पूरा नहीं करेगा, बल्कि रूह कुद्स जो है वो हमें शागिर्द बनाने के लिए। इसका चौथा पॉइंट जो है, रूह कुद्स जो है वो बख्शिश है और वो मकासद क्या है? वो खुदा का वो बड़ा मकसद, वो बड़ा पर्पस, उस बड़े मंसूबे को पूरा करेगा जो शागिर्दियत के राह में रुकावट है। आमीन। 19वीं आयत 28 बाब की 19वीं आयत, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। रूह कुद्स जो है इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि वो मुझे और आपको प्रिपेयर करे, वो मुझे और आपको तैयार करे कि पहले हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बन जाएं और फिर औरों को शागिर्द बनाए। और याद रखिएगा, एक अच्छा डिसाइपल, एक अच्छा शागिर्द, एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा उस्ताद होता है। जब तक कोई शागिर्द नहीं बनता, जब तक कोई शागिर्द की जुबान नहीं सीखता, जब तक कोई यानी शागिर्द का मतलब है वो जो बादशाह के गिरदा गिर्द घूमे और कभी भी बादशाह से जुदा ना हो। उस्ताद और शागिर्द की एक बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल और सिंबल हमें सलातीन की किताब के अंदर भी मिलती है, जहाँ पे हम एलिया और अलीशा के बारे में देखते हैं कि बारहा अलीशा को बताया जाता है, क्या तुझे मालूम है कि तेरा उस्ताद एलिया तुझसे जुदा हो जाएगा? तो वो कहता है मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा उस्ताद मुझसे ले लिया जाएगा। शागिर्द इस तरह के होने हैं। ठीक है, अगर हम सीखने जा रहे हैं, ये दिन हमें शागिर्दियत बनने के लिए तैयार करता है। आमीन। सूरह आसमानी यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, आज के दिन हम अहदो पैमान करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ कि हम अच्छे शागिर्द भी बनेंगे और फिर शागिर्दों को बनाएंगे भी। रूह कुद्स हमें इस बात के लिए तैयार करता है। अगर हम लूका के इंजील का 34वां बाब उसकी 50 और 51 वर्ष को देखें तो खुदा के कलाम में मेरे लिए और आपके लिए एक जबरदस्त बात की गई है। क्या कहा गया? फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें क्या दी? बरकत दी। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाएंगे तो वो बरकत देते हुए उठाएंगे और बरकत देते देते ही खुदावंद यीशु मसीह उनकी नजरों से क्या होंगे? ओझल होंगे। और छठा काम क्या किया शागिर्दों ने? फिर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया। वो उनको बरकत देता हुआ आसमान पर उठाया गया और उनसे जुदा हो गया।
और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौटे। हालेलुया। ये तीसरा छठा पॉइंट है कि शागिर्दों ने यीशु मसीह को सजदा किया। आप जानते हैं सारे शागिर्द जो थे ना वो यहूदी इज्म से तल्लुक रखते थे। यहूदी जो है मासवाए खुदा के किसी दूसरे को सिजदा नहीं करते। यहूदी क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी गर्दन उतर जाए, हमारे बदन पर से हमारी गर्दन उतार दी जाए, लेकिन हम किसी दूसरे को सिजदा नहीं करेंगे। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने अपना शख्सी निजात हिंदाई कबूल नहीं किया, बल्कि बादशाहों का बादशाह तस्लीम किया और शागिर्द यीशु मसीह के सामने झुक गए हैं। जब यीशु आसमान पर उठाए गए तो शागिर्द सजदे की हालत में और फिर तमजीद करते हुए वापस लौटा। तो खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है, ये बात महज यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं कही। क्या वो आसमान पर उठाए गए और बस उठाए गए और आगे कुछ नहीं हुआ? अगर आप दानियल की किताब, अंबिया के सहायक, ज़बूर की किताबों का मुताला करें तो वहां पर मेरे लिए आपके बारे में आपके लिए बहुत कुछ लिखा। खुदा का बंदा दाऊद कहता है यहोवा ने कहा मेरे दाहिनी तरफ बैठ। तो यीशु मसीह के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए कि उस यहोवा खुदा ने कहा मेरे खुदावंद को कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। इसका मतलब है वो अब्दुल उबाद जिंदा है, कायम है और हमेशा कायम रहेगा। ये नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी इख्तियारात खत्म हो गए हैं, बल्कि मरने और जीवने से पहले कहा गया था कि मैं आसमान पर जाऊंगा। अगर आप अब्रानियों का खत निकालिए 8वें बाब की पहली आयत को भी पढ़िएगा, और अगर मरकस की इंजील 16वें बाब की 19वीं वर्ष को भी देखें तो वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह ये बात हमें कहते हुए दिखाई देते हैं। जी बेटा जी। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात ये है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है। जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी और अहम और उम्दा बात ये है कि हमारा एक सरदार काहिन था जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दाहिनी तरफ, सिर्फ यीशु मसीह नहीं कह रहे थे मैं आसमान पर चला जाऊंगा, उस वक्त की बात नहीं कर रहे जब वो कोहे ज़ैतून से उठाए जा रहे थे, गलील लोगों के सामने से उठाए जा रहे थे, बल्कि इसे पेशतर किताब मुकद्दस में उसके बारे में बेश जगहों पर लिखा गया था, पाया गया था कि वो सरदार काहिन जो है किब्रिया के दाहिने तरफ जाकर क्या करेगा और बैठ जाएगा। सिर्फ शाही दरबार में एक सीट खाली होती है, आम दुनिया में भी इस तरह है। जो बादशाह होते हैं वो अपने दरबार में, अपने हॉल में जहाँ पर वो निश्चित अफरोज होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी मर्जी से किसी को भी हॉल में से उठाकर कह सकते हैं कि आप मेरे साथ आकर दाहिनी तरफ बैठते हैं। तो खुदा बाप के पास दाहिनी तरफ बैठने के लिए तख्त पर जगह खाली थी, इसलिए उसने अपने बेटे को जमीन पर से आसमान पर बुलाया और क्या किया, उसको दाहिनी तरफ बैठाया। और यीशु मसीह आराम से सुकून से बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? वो मेरे लिए और आपके लिए शिफायत कर रहे हैं। नावी बात, आठवीं बात हमने सीखी कि यीशु बाप के दाहिनी तरफ जा बैठा है। नावी बात, अब वो तख्ते नशीन हो चुका है और जो बातें हम खुदावंद यीशु के नाम से, जो दुआएं हम यीशु के नाम से मांगते हैं, तो यीशु क्या करते हैं? वही दुआओं का प्याला, वही दुआएं उठाकर बाप के सामने रख देते हैं। कहते हैं ये दुआएं मेरे शागिर्दों ने, मेरे बेटे बेटियों ने, मेरे फॉलोअर जो है उन्होंने मेरे नाम से मांगे, पहले इनको पूरा करें। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की जो आसमान पर उठाए जाने वाली बात, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी वो अख्तियारात, वो सारी अथॉरिटी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को तैयार करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि हमने उस वादे की तकमील पर कायम रहना और उस वक्त तक जब तक हमें दूसरा मददगार नहीं मिल जाता। और याद रखिएगा, रुकुश के बगैर ना कोई मनाजी कर सकता है और ना कोई मनाजी को कबूल कर सकता है। रुकुश के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है।
अगर कोई कहे ना यीशु खुदा का बेटा तो इसका मतलब है रूह कुद्दूस उसे तैयार करता है कि वो कहे यीशु क्या है, खुदा का बेटा है। और नंबर 10, आपकी जिंदगी में जितने मर्जी तूफान आए, जितनी मर्जी तंगियां आए, जितने मर्जी अबलीस के मंसूबे आए, जितनी मर्जी रुकावटें आए, खुदा का लहू जो है, खुदा यीशु मसीह का लहू जो है, ये आपको उन सारी मुसीबतों, उन परेशानियों से क्या करता है, महफूज रखता है। 11वां पॉइंट हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया तो फरिश्तों ने भी यीशु के बारे में आकर यही खुशखबरी दी कि ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो। अगर रसूलों का इमाल 10 बाब उसकी 11वीं पहले बाब की 10वीं 11वीं आयत में पढ़े ना तो वहां पे लिखा फिर फरिश्ते आए, उन्होंने कहा गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो। जिस यीशु को तुम इसी तरह जाते हुए देखते हो, इसी तरह फिर उसको वापस आते हुए भी। आमीन। तो इसका मतलब है फरिश्तों ने भी गवाही दी कि यीशु आसमान से वापस आएगा और वो हमारे साथ रहेगा। और जाते वक्त यीशु ने रूह कुद्दूस का वादा किया, वो जो वादा उसने किया है ही इज कमिंग सून, कि वो जल्द आएगा। इसकी तकमील जो है हम देख रहे हैं कि बहुत जल्द पूरी होने वाली है। 12वां पॉइंट, क्योंकि यीशु वादों में सच्चे हैं। जो कुछ यीशु ने कहा अपनी ज़मीनी जिंदगी में उसको पूरा किया। अगर यूहन्ना की इंजील का मुताला करें 14वें बाब के अंदर पहली आयत से पढ़े तो वहां पे लिखा है खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमको क्या देता, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। आमीन। अगर यीशु मसीह सूर्य आसमानी करके आसमान पर चले गए तो उन्होंने मेरे लिए, आपके लिए जगह का बंदोबस्त किया। अब रूह कुद्दूस हमारे साथ है, रूह कुद्दूस हमें प्रिपेयर कर रहा है कि किन किन बातों में हमने खुदा के कलाम में आगे बढ़ना और किन किन बातों को हमने करना नहीं है। रूह कुद्दूस हमारी रहनुमाई करता है, तो ईद पेंटिकोस्त पे इस तकबीर को हम पूरा पाते हैं। तो इसके लिए हमें मेंटली तौर पर प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। अगर हम ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर मजबूत नहीं है तो फिर रूह कुद्दूस हमारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं करेंगे। खुदा आप सबको बख्शे।